PhD degree in computer science and has been utilizing open source ICT tools, technologies in teaching, learning, and student evaluation since 1990. आप महसूस कर सकते हैं 1990 उस वक्त कंप्यूटर का क्या दौर रहा होगा, और उस वक्त से सर ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरल लेवल पे इस नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। बहुत सारी एडवाइजरी कमेटीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे, बहुत सारे बोर्ड्स में, बहुत सारी इवैल्यूएशन कमेटीज में सर का पार्टिसिपेशन है। मैं शायद अगर बोलना शुरू करूं तो पूरा दिन लग जाएगा। और सर is contributing in e-learning, blended learning, MOOCs, ICT-enabled pedagogy, computer application in project management, e-governance, cloud enterprise resource planning, semantic web and information retrieval and modeling, and so many things. Friends, जैसा मैंने शुरू में बोला, मेरे लिए बेइंतहा किस्मत की बात है कि सर हमारे साथ हैं, और बहुत ख्वाहिश थी सर आपको अलीगढ़ देखना, और इंशाल्लाह सर ऑफलाइन में आप ब्लेस करेंगे। यू हैव ऑलवेज बीन काइंड एनफ विद मी सर। फ्रेंड्स, सर के बारे में बहुत अदब के साथ सर मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा, अगर इजाजत दें तो आप। आपकी आमद ने महफिल को रोशन कर दिया, आपकी आमद ने महफिल को रोशन कर दिया सर, आपने अनगिनत दिलों को गुलशन कर दिया, अनगिनत दिलों को गुलशन कर दिया सर। वेलकम सर, मेरा ग्रेटिट्यूड सर, मैं मेरे इमोशंस को आप समझ सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। थैंक यू खान साहब। Yeah, thank you, Khan Saab. Good afternoon to all of you. Thank you, Khan Saab, for extending the invitation to me. And thanks to the director, Professor Basi, and participants. I was a little surprised to see that none of the participants switched on the cameras. Even though this is an online program, कुछ Khan Saab ने कहा था क्या कैमरा ऑन करना मना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, करें प्लीज। If it is not inconvenience for you, so I request all the participants, if it is not inconvenience for you, please switch on the cameras, because there are 2 things I just want to speak to you. First of all, I speak in bilingual. Is it okay with you? I am a multilingual. But only bilingual only I'll be using. Is it okay with you? Yes, sir. It's fine, sir. It's fine, please. Okay, right. The second important thing is I conduct these 2 sessions, in workshop mode. Okay, so I speak about the concept, and only speaking the concept या उसके बारे में चर्चा करना काफी नहीं है. And what is important is every one of us should know the enabling environment also. So to create that enabling environment, some specific skills and competencies we need to acquire. So that also I'll speak. So these are the 2 important things I decided to do that one. यहाँ मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि मैं पैदाइशी हिंदी भाषी नहीं हूं, ना मैं पैदाइशी अंग्रेजी भाषी हूं, बट पिछले तकरीबन 50 सालों से पत्राचार वार्तालाप ये दोनों भाषाओं में कर रहा हूं. Apart from this, I speak under 8 languages. Okay, and initial stage of my childhood, we were from old city in Hyderabad. So I learned a little bit of Urdu also, but धीरे धीरे दिल्ली आने के बाद बस उसी के पीछे का जो तमीज तहजीब लिहाज जो है तीनों खत्म कर दिया. तो दिल्ली के जो मतलब हवा पानी जो है, I like it. Okay, so I just want to tell you that
The reason why I've been mentioning about these points, because of course we talk about the MOOCs. MOOCs के बारे में ही बात करेंगे. Before MOOCs, there are certain qualities because we are all teachers. There are 5 to 6 important things, whether it is a classroom teaching, supporting synchronous mode of learning, whether it is online courses, short term or long term, supporting asynchronous mode of learning. अच्छा, अभी सिर्फ 2 लोगों ने ऑन किया था, बाकी आपको भी कोई एतराज है तो कैमरा बंद करके बैठ जाइए, क्योंकि अभी आई एम नॉट हैप्पी. आई थिंक पीपल आर स्विच्ड ऑन देयर कैमरास. आई थिंक ये एटीट्यूड पहले चेंज होना चाहिए. और बट एक अच्छी बात है, मैं जब भी मैं लोगों को कहता हूँ कैमरा ऑन करो, कहते सर जैसे ही आपने कहा मेरा कैमरा बैठ गया. इंशाल्लाह ऐसा होना चाहिए, ताकि मैं कुछ कहूं मेरा ख्वाहिश पूरी हो जाए. लोग कहते हैं भाई आप कुछ जवाब दो, सर माइक्रोफोन बैठ गया. अरे मैंने कहा था कीबोर्ड में तो टाइप तो करो. माय कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग. बट एट द सेम टाइम एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ MOOC expert. Okay, so but what I'm trying to say that these Sir, things actually we are joined with the mobile actually. Let me join with my laptop, then we will. अरे रिजवान भाई, आप मुझे पता है, मुझे पता है आप कर लोगे. प्लीज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं. So what is important here is we are all teachers first of all, and let me tell you a little background of this one. We are all conventional classroom based teachers, and the conventional classroom is a teacher centric environment, and that the classroom is supporting the synchronous mode of learning. But ज्यादातर केसेस में आई मी माई सेल्फ वाली कहानी है. मैं तब तक नहीं पढ़ाऊंगा, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, तो मैं ही नोट्स देता हूं, मैं ही एग्जाम कंडक्ट करता हूं, मैं ही स्टूडेंट्स को डांटता हूं, कई सारे चीज. दैट वाज द केस, and it's wonderful, and we have been conducting this one for many years, and we have been enjoying that. In 2016, when Government of India introduced this MOOC, मेरा definition है MOOC का, it's an online course which is open in nature, massive in scale. अच्छा, एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया. सबके पास कॉपी कलम है, ठीक है, और आराम से, क्योंकि 3:30 बजे के बाद खान साहब ने रखा था, तो रोटी वोटी तो हजम तो आराम से हो गई होगी इस टाइम तक. हमारे लिए तो थोड़ा रोटी देर से खाना पड़ा, क्योंकि हमारे वालिदा जो है कहीं बाहर से आई हुई है. सो इसलिए थोड़ा सा रोटी बनाने में, क्योंकि हमारा धर्मपत्नी के साथ तो थोड़ा टाइम लगा, तो अभी मैंने रोटी खाया. बट बाकी सब लोग आराम से कॉपी कलम साथ में रख के ये सारे बातों को थोड़ा sequentially और chronologically लिखते रहिएगा. This will be helpful for you also, क्योंकि it's not only lecturing, lot of things I come and I will be sharing with you. So when in 2016 Government of India, in the name of Swayam, since you already heard about that, they started the MOOCs program. So what is the MOOC? First of all, it's an online course which is open in nature, massive in scale. It's an online course which is open in nature, massive in scale. That's the first point. Second point is, it is supporting the asynchronous learning environment and enabling the learners to use a self-study mode. जब ये 2016 की बात है, एंड उससे पहले ही तकरीबन ऑलमोस्ट उससे 10 साल पहले ही I started using Moodle, which is a enabling environment for MOOCs, which is also an enabling environment for online courses, which is also an enabling environment for hybrid / blended learning courses. ये 2016 के 10 साल पहले I have been using a platform called Moodle, MOODLE. It is an abbreviation of Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, MOOCs. No, sorry, Moodle, which is
which is basically a MOOC enabling environment hai. So what happened? So this MOOCs was started primarily for the students. So some of the good quality courses, Government of India want, क्योंकि कई जगहों पर स्टूडेंट टीचर नहीं है, टीचर है तो पढ़ाने वाला नहीं है ढंग के. मैं कहता हूं ढंग का पढ़ाने का मतलब मेरा ये है गुणवत्ता के साथ, नवाचारों के साथ, with quality and innovation is very, very important. So that is the reason the Government of India has started this environment. And of course, they want to give a quality education. Quality education is not only one message, it should be spread to across India. Everybody should get the quality education, irrespective of whatever levels they are, whatever reason they are studying, whatever other parameters which is connecting to that. So उस दौरान दिक्कत क्या हुआ? There are many people started facing that music. Conventional mode of teaching was happening, and suddenly some institutions were given the responsibility of designing, developing, and delivering the MOOCs courses. So it is not only three. There are three more elements are there. So some institutions like IITs was given the responsibility. कुछ IIMs को दे रखा है, कुछ centrally funded institutions को ये दायित्व दे रखा है. So to design, develop and deliver the MOOCs courses. So कुछ लोगों ने किया था, बहुत लोगों ने इसको स्ट्रगल किया, कैसे करना है, क्या करना है. Luckily IITs were little ahead, and जिसको Moodle जैसा environment पहले ही पता है, so people like us was little comfortable. क्योंकि मित्र हमें कुछ, मुझे नहीं लगता था कितना कोई मारामारी इसके अंदर नहीं थी. But what is important is how to motivate a person, how to train a person, how to sensitize a teacher who is predominantly teaching in a conventional mode of teaching into MOOCs environment. उस दिन से लेके अब तक इंशाल्लाह यही चैलेंज था हम सबका. मेरा तो ज्यादा प्रॉब्लम है, because almost day to day में I have been conducting this kind of hands-on workshops. Hands-on workshops. ये कोई theoretical workshops नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बहुत मैं theory बता के मैं practical वाले में लेके आऊंगा. What are the things expected to be done? So the problem, उसके बाद then UGC ने कहा था कि if you want to have a promotion from assistant to associate to other positions, they're saying that आपके पास कोई MOOCs की training experience है या MOOCs आपने develop किया. So nobody will be simply asking and वो आपको बुला के तो नहीं कराएंगे. So मैं आज वो भी बताऊंगा, कल के दिन कोई हमें सीधा बुला के MOOCs में हमारे लिए कराना चाहे तो किस तरीके की तैयारी चाहिए. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं. जब तक आपको साइकिलिंग पेडलिंग नहीं आता, हम सब लोगों ने बचपन में पेडलिंग किया था, वो लड़का हो लड़की हो, पेडलिंग करने के बाद ही सीट पे बैठे, उसके बाद ही हमारे पास जो भी मोटरसाइकिल जो भी था उसके अंदर बैठ के सवार, क्योंकि बैलेंसिंग करना पहले आना चाहिए था. और बैलेंसिंग क्योंकि पहले तो छोटे उम्र में तो पैर ने टच नहीं करता, इसलिए then we started doing all these things. That's how there's a stage. There are different components are there, and we need to ensure that all the components needs to be understood. So let me start with what are the critical components of MOOCs. Acha, there are two important, I mean to say that stages in MOOCs. One, for teachers, the job of the teacher is to develop the MOOCs. Okay. So second one, consumers, the students and fellow teachers और बहुत सारे. So developers के लिए क्या क्या चीज बेसिकली पता होना चाहिए, और कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर के बारे में तो शायद आपको ऑलरेडी बता रखा होगा, तो मैं जरूरत पड़ता है तो बाद में बताऊंगा. आपको कभी भी कहीं भी कोई भी चीज के ऊपर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी आल्सो इंटरमिटेंटली, बट बेटर टू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, बिकॉज स्टिल इवन आफ्टर almost 4.5 years of corona, अभी भी हमें नहीं पता चलता है कि भाई कौन कहाँ कौन क्या बोल रहा है. So I think these are the issues are there. So better to write down the chat box. मैं सारे आपके सवालों का जवाब देके ही जाऊंगा जहां तक मुझे समझ में आ रहा है.
क्योंकि मैं मूक्स के जो बोर्ड का मेंबर भी हूं और नेशनल लेवल का ट्रेनर भी हूं. सो देयर आर डिफरेंट रोल्स अदा कर रहा हूं, बट फिर भी देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. सो जब शुरू किया था, आई सेड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट अच्छा, बिफोर आई शुड स्टार्ट माय सेशन, there is one important and interesting MOOC, similar like a MOOC platform I have developed and I have been using for many years for my teaching and learning is this. And the address of this platform is इसके एड्रेस जो है आपके चैट बॉक्स में मैं डाल रहा हूं. And while listening to me also, you can while listening to my lecture also, you can watch these things carefully also. Okay, so this is the platform where whatever the resources which I have been talking about, whatever the things, ये सारे यहाँ available है. All the PPTs जो चीज मैं बोल रहा हूँ, ये सारे available इसके अंदर है. I think, I hope you must have opened, some of you, and or otherwise also you can see it on your screen. There is a picture of Albert Einstein, और एल्बर्ट आइंस्टाइन के नीचे एक इंपॉर्टेंट कोट लिखी हुई है. अच्छा, बाय द वे, दिस प्लेटफॉर्म which I have been showing to you is live for the last 15 plus years, and I have not invested single rupee on this platform, and every one of you can able to do. आज मैं इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आगे आगे बता दूंगा. It's a very important delivery platform. And whatever material, so what is written below the Albert Einstein photograph is, I do not teach anyone. I only provide the environment in which they can learn. मैं किसी को पढ़ाता नहीं हूं, पढ़ने के लिए माहौल खड़ा करता हूं. And this is aptly suited for all type of education. So whether it's a conventional classroom teaching, whether it is short-term or online or long-term online courses, of course MOOCs also, and blended mode of teaching, and many other environments also. Okay, so what is important, I think this is the skill and competency we need to acquire if you want to be okay. So what are the stages of the MOOCs development? So as I already told you that there are two important sets of people are available. One, MOOCs developers. Second set of people are MOOCs consumers. So developers जो है, मतलब उसके developer से पहले मैंने आपको शुरुआत में कहा था, उसके बाद मैं रुक गया. So what apart from skills for developing this one, there are some interesting things which are required to be understood by the each one of us. Look at this one on the screen. The first and foremost thing, I think now it is second. The first and foremost thing, exposure to the prevailing modes of teaching and learning, especially pertains to the MOOCs. So we need to understand the MOOCs ecosystem, what it consisting of, and what all the skills and competencies to be acquired. That is the first and foremost thing. And this is common across the board. Second, very important, यहाँ बहुत सारे कहानियां मैं बताऊंगा और एक कहानी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट इतने सारे मसलों को झेलने का मुझे मौका मिला था. Second important thing is that teacher must be a good subject expert. The teacher who is going to associate with the MOOCs development must be a good subject expert. और यहाँ एक important वाली बात है, MOOCs के मतलब हमारे दिमाग में जो है ओनली स्वयं, नहीं स्वयं के लिए ऐसा कुछ नहीं. मैंने जो प्लेटफॉर्म बनाया professorksrinivas.in, तकरीबन 4.5 से 5.5 लाख लोग इसको एक्सेस करते हैं.
एंड उसके अंदर मैं छोटे छोटे कोर्सेस ऑफर करता हूँ। तकरीबन अभी 4 कोर्सेस चल रहे हैं। एक एक कोर्स का तो एक एक कोर्स में 2,500 से लेके 3,000 तक पार्टिसिपेंट्स है। मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता हूँ, बस टेक्निकल स्किल्स देता हूँ उनके साथ। It itself is you can watch. So, or if your institution can want to start the courses, you can do it. And if your institution is 4.3.26 and above, next score, आप खुद स्टार्ट कर सकते हो कोर्सेस। ऐसे तकरीबन 7-8 इंस्टीट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस है, इसमें लॉ है, इंजीनियरिंग है, सेंट्रल उसका मैं मेंटर भी हूं। सो ओनली नहीं है, आप किसी भी में जाके कर सकते हो। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट बी ए गुड सब्जेक्ट एक्सपर्ट, theoretically strong and practically and acquire the practical implementation skill. Very, very, very important. Practical implementation. The moment I say something, this social science वाले कहेंगे सर हमारे में practical क्या होता है? See, practically what is NEP इस मामले में तो एक interesting statement देता है. Whatever knowledge you are giving, it should be helpful for the learner to use in their real life situations. आप किसी को भी जो भी ज्ञान बांटते हो वो अपने निजी जिंदगी में काम आना चाहिए, उस तरीके से उनको ओरिएंट करो। दैट इज व्हाट आई मीन टू से प्रैक्टिकली फॉर नॉन इंजीनियरिंग एंड नॉन मेडिकल पार्टिसिपेंट्स। ये मत कहना कि सर हमारे तो नट एंड स्टोर के काम नहीं होता, तो ये वाली बात। सेकेंड, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टीचर्स मस्ट गेट एक्सपोज टू द लेटेस्ट learner centric pedagogical models or approaches. अभी तक हमारे कन्वेंशनल क्लासरूम टीचर सेंट्रिक ही चल रहा था। ये शिक्षार्थी केंद्रित अप्रोच में जाना बहुत बहुत जरूरी है। इस शिक्षार्थी केंद्रित अप्रोच के लिए जाने के लिए थ्योरेटिकली हमें क्या आना चाहिए और प्रैक्टिकल स्किल्स भी क्या आना चाहिए, आज मैं बताऊंगा ये बात। ओके, तो ये ऑलमोस्ट आई शुड से द फल्क्रम ऑफ द एंटायर मूक्स कोर्सेस। बाद में आप कहोगे कि सर ये बहुत बाकी कोर्सेस इस तरीके से क्यों नहीं हो रहे, मैं उसके लिए जवाब नहीं दे सकता। और कई बार हम जिसके कोर्स अप्रूव हो जाते हैं उसके लिए हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बाद में लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब इतना मेहनत करना जरूरी है, आपको तो पता है इसमें मसले हैं उसमें मसले हैं, तो जहां भी जाते हैं मसलों को ही बात करते हैं। यहां मैं एक चुटकुला बताता हूँ, शायद आप अप्रिशिएट करेंगे। पहले मैं हिंदी में बोलूंगा। मसले पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। जब नौकरी करना है मसलों के साथ जीना सीखो। Why we should talk about only अरे यार ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अरे भाई ठीक है। I'll tell you one interesting thing today. I agreed to take some institution for 1 hour class. सुबह 10 बजे नाश्ता भी नहीं किया मैंने, 10 बजे शुरू किया था, वो होते होते 2:30 बज गया। But I don't feel it. It's a bore. It's a बोझ. It's a privilege to address people like you. इतना मौका कहाँ मिलता है? Almost daily ये ऊपर वाले का रहम है मेरे ऊपर, कम से कम 3 से 4 सेशंस में लोगों को लेता हूँ। So, but I'm trying to say that more and more everybody should know. This is not कोई rocket science नहीं है। MOOCs development is not a rocket science. You can do it. मैंने आपको करके दिखाया अभी। It's a very simple process. But what is important is certain section of people created that kind of environment. भाई इन्हीं का करना है, इसमें ये problem है, ऐसा कुछ नहीं। Okay? If you are a good teacher, conventional mode, online class, अभी लोग ये भी कहने लगे online is boring sir. Online, मैंने कहा online हमको कह सकते हैं क्या नाश्ता बोरिंग है, डिनर बोरिंग है, शाम की चाय के साथ कुछ मट्ठी भी हम लोग खाते हैं, वो बोरिंग है? Nothing is boring. Please try to understand that's the way our mindset has been created, and it all something dependent on the pedagogy also. That's very important. So the learner-centric pedagogical approaches are very important. Next, and यहाँ पे same thing. So fourth one is exposure to the digital skills and competencies. So if you want to be a good MOOCs developer, there are simple techniques are there. Digital skills and competencies. Everybody must know that.
Because once आपके कोर्स अप्रूव हो जाता है MOOCs में, you will be the MOOCs will be sending, Swayam team will be sending a username and password. आपको अनलिमिटेड YouTube के स्पेस मिल जाता है. अब YouTube में कभी भी जिंदगी में कभी वीडियो अपलोड नहीं किया था तो वो तो परेशान हो जाएगा. तो what is important? MOOCs courses are designed, developed and delivered in 4-quadrant approach. What is this 4-quadrant approach? आपके सामने है 4-quadrant approach. इस 4-quadrant approach में क्या क्या चीज इसके आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. तो 4-quadrant approach consisting of e-tutorials, मतलब वीडियो कंटेंट. किस तरीके का वीडियो कंटेंट होना चाहिए, ओके, एंड उस वीडियो कंटेंट में क्या को, एंड फाइनली दैट वीडियो कंटेंट हैज टू बी अपलोडेड इनटू द यूट्यूब. सो ये प्रोसेस सभी को पता होना चाहिए. इट्स नॉट सिंपली प्रिपेयरिंग ए वीडियो. एंड सेकंड पॉइंट इज, बाय चांस इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, जो आपने जो सिलेक्ट किया था, दैट वीडियो इज नॉट अवेलेबल, you must be having plan B also. So I divide the resources into 2 parts. One is core resources, second one is supplementary resources. Core and supplementary. Core मतलब the essential readings. Core का मतलब है essential readings. Supplementary is, yes, some of the things, within that 40 videos, you cannot complete a course. Because why? It is not a captive audience. अभी जो जिसको हम पढ़ा रहे हैं वो कैप्टिव नहीं है. ओपन इन नेचर, मैसिव इन स्केल. कोई भी आके ठहलते ठहलते पहुंच जाएगा, कोई भी जाके कोर्स में ज्वाइन करेगा, कोई भी पूछेगा कुछ भी. So you cannot do that one. Second, e-content. This is a text material. Because again, it is supporting to the learning of the learners. Discussion forum, quadrant 3, is a collaborative learning environment where the doubts of the students will be answered in near real-time basis. It's a collaborative learning environment. क्योंकि डाउट्स पूछेंगे, डाउट्स का जवाब आएगा. पहली बात है डाउट पूछना कैसे. And there are a lot of things people used to say, that how to ask the doubts and how the doubts can be. And last one is assessments. So these are the 4 quadrants on which the MOOCs courses are designed, developed and delivered. Why I have been telling this one? Because so you should know, and the digital skills and competencies means video, how to develop the video, what are the things expected to be done in the video. Okay, so somebody else will be assisting you, but at the same time आपको खुद को तो पता भी होना चाहिए, और कंटेंट, और आजकल तो AI भी आ गई. So a lot of things can be done, और थोड़ा सा लाइफ को आसान हो गया था. Then fifth important thing is, teacher must be a good communicator. I am comparing both classroom as well as the online environment. So class, of course, verbal is very important. Verbal and non-verbal communication are very important. Why non-verbal verbal and non-verbal is very, very important? Because you can see in MOOCs courses, of course, in MOOCs courses in normal also. So learner engagement, learner encouragement, learner motivation is very important. मतलब आपने एक चीज महसूस किया होगा, आजकल तो आना बंद हो गया. फेसबुक में पहले आते थे, मेरे कोर्स में 10,000 लोगों ने ज्वाइन किया. ये कोई पॉलिटिकल रैली थोड़ी है, हम लोगों को इकट्ठा करके बुला रहे हैं. ये टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है. बट लोग बाद में ये नहीं बताते 10,000 में से कितने लोगों ने एग्जाम लिया था, कितने लोगों ने पास किया. Nobody is going to tell that. So the point is, learner engagement is very important. And teacher, यहाँ सबसे important वाली बात है, teacher is not visible, but you should create an environment that teacher is there and student can able to use his services. Learner encouragement is very important. Learner motivation is very important. So what are the techniques are available to use this? सबसे important वाली बात. Okay, and
एक बार मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले लेट मी आस्क यू दैट माय वॉइस इज रीचिंग टू आप सबके पास, से विद Yes, इमोजी. sir. Yes, sir. Very Yes, clearly. sir. Wonderful, Yes, wonderful, sir. wonderful, wonderful. So learner engagement, learner encouragement, learner motivation is very important. MOOCs बनाना बड़ी बात नहीं है. Please try to understand. It is not a rocket science even. I'll tell you. Very simply, you can prepare it. But what is important is there are issues. There will be challenges, there will be concerns. Because it's not a conventional mode of teaching, and only captive audiences will not be there. So you have to take care of that one. And what will be driving? So आपको लगता है कि सर ये तो MOOCs के लिए? No. What is important here is, look at this. These things, PPP, public-private partnership, या PowerPoint presentation, Rizwan bhai, वो public-private partnership नहीं है. No, sir. No, not at PowerPoint all. presentation भी नहीं है. Exactly. So, yes, the first one is passion towards the teaching. Very important. जज्बा होना चाहिए पढ़ाने के लिए. पढ़ाने का मतलब आजकल तो लोग कहते स्टूडेंट्स को पढ़ाना, पार्टिसिपेंट को पढ़ाना, दोनों बराबर ही है आजकल, तो कोई इतना कोई डिफरेंस तो नहीं है. So दोनों में जज्बा चाहिए, पैशन. Second important thing is patience towards the teaching. Very important. Without patience, you cannot even survive. And the last one, perseverance towards the learner. क्योंकि हमारे MOOCs कोर्स में स्लो लर्नर्स होंगे, एवरेज लर्नर्स होंगे, गिफ्टेड लर्नर्स होंगे, इंट्रोवर्ट्स होंगे, एक्सट्रोवर्ट्स होंगे. तो कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सर कुछ बताएंगे, सर कुछ और करेंगे, सर कुछ और करेंगे. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो PPP is very important because all these things are prerequisites to start a MOOCs course. जब तक हमारे पास ये चीज नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. And the last one, we talk about the 21st century skills. Of course, we teachers must be having that. Learning and innovation skills, critical thinking and problem solving skills, creativity, innovation, communication and collaboration. ये चीज सबके पास होना चाहिए. These are the prerequisites of the MOOCs. ऐसा नहीं कि जो UGC एडवर्टाइज करते 5 साल का एक्सपीरियंस है. अरे 5 साल का एक्सपीरियंस कन्वेंशनल क्लासरूम में है, MOOCs डेवलपमेंट में नहीं है. कभी भी इस तरीके के एनवायरमेंट, मैंने 1 क्रेडिट कोर्स भी नहीं बनाया ऑनलाइन में, 2 क्रेडिट कोर्स भी नहीं बनाया ऑनलाइन में. तो अचानक से क्या होगा? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. एक एग्जांपल क्या, 2-3 एग्जांपल बताता हूं. अभी हाल ही में एक दोस्त का फोन आया मेरे पास, तो बस बातचीत हुई, बस बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में बातचीत हो. तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब एक खुशखबरी है, एक मेरा MOOCs कोर्स अप्रूव हो गया. मैंने कहा था इंशाल्लाह. और क्या हो गया यार? बहुत अच्छी बात है, टेल मी, हम सेलिब्रेट करेंगे. तो मैंने कहा था कि वो कह रहे जरूर आए डॉक्टर साहब, नेक्स्ट टाइम दिल्ली आएंगे तो जरूर हम सेलिब्रेट करेंगे. तो मैंने ऐसे ही पूछा था कि भाई आपका स्ट्रैटेजी क्या है? चलो आपने एक प्रपोजल सबमिट कर दिया होगा, तब प्रपोजल का टिक लग गई. वो कह रहे हाँ मेरे पास एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उससे चलाऊंगा. मैंने कहा डेटा एंट्री ऑपरेटर से क्या चलाओगे? तो कह रहे कि यार डॉक्टर साहब आप मजाक मत करो. मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ भाई, आप ही ने खुद कहा था मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर से चलाऊंगा, ऐसे क्या चलाओगे? तो मैंने कहा था मुझे ये बताओ, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा आपसे. मैंने इनको कहा था कि 2-3 मुझे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके बारे में थोड़ा मुझे बता दो. बिकॉज MOOCs कंसिस्टिंग ऑफ 6 इंपॉर्टेंट स्टेजेस. MOOCs डेवलपमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 6 इंपॉर्टेंट स्टेजेस. पहला स्टेप है कोर्स प्लानिंग एंड डिजाइनिंग. ये उसी सज्जन से मैंने पूछा था और मैं आपके सामने भी रख रहा हूं. सेकेंड स्टेप है कंटेंट डेवलपमेंट एंड क्यूरिंग ऑफ द कंटेंट विद पेडागोजी. स्टेप 3 कोर्स डिलीवरी, अंडरस्टैंडिंग द selecting and understanding the delivery platforms, course delivery platform.
स्टेप 3, मैं दोबारा दिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ले जाऊंगा। स्टेप 3, स्टेप 4, कोर्स ट्रांसैक्शन। ये 15 हफ्ते के कोर्स है। पहले हफ्ते में क्या करोगे, व्हाट आर द मॉड्यूल्स टू बी कवर्ड, नेचर ऑफ वर्क क्या है, रिमार्क्स क्या है। स्टेप 5, असेसमेंट, कोर्स असेसमेंट प्रिपरेशन, किस तरीके के असेसमेंट्स आप प्रिपेयर करोगे। स्टेप 6 जो है स्टूडेंट एंगेजमेंट। ये 6 स्टेप्स मैंने फोन पे उनसे पूछा था, उस साइड से बोली बंद हो गई। मैंने कहा था भाई साहब सुन पा रहे हो, तो सुना नहीं। मैंने तुरंत भाभी को फोन किया, क्योंकि भाभी भी बैठी है साथ में, क्योंकि हमारे वाइफ से के साथ बात वार्तालाप कर रही है। मैंने कहा था भाभी क्या बात है, भाई साहब का तो बोली बंद हो गई, सब खैरियत तो है। कह रहे भाई साहब खैरियत है इंशाल्लाह, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट आपने पता नहीं क्या पूछा, भाई साहब एकदम से बैठ के कह रहे कि 2-3 गिलास पानी पी रहे थे। मैंने कहा था भाई मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने इनको कहा था कि एक मुबारकबाद दिया था मूक कोर्स का, और मैंने कहा था भैया आप बता दो यार, ये 6 में से आपका किस किस चीज की तैयारी है। उसके बाद हमारे भाई साहब का फोन आया, और 2-3 मिनट के बाद कह रहे मुझे ये बताओ यार, मैं आज बुधवार है, कल दिल्ली आ जाऊं। मैंने कहा यार कल दिल्ली आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी आ सकते हो, मेरा भाई हो। कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कि मेरा टीम तो लेके आ रहा हूं, आपके साथ ही में रहूंगा, और शुक्रवार को, शनिवार को, इतवार, 3 दिन हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, पूरा प्रोसीजर समझा दो मुझे, आगे कैसे लेके जाना है। मेरा बीपी शूट अप होने लगी। अरे यार प्रोग्राम इनका है, आपने अभी तक कुछ तैयारी नहीं किया था। आई एम सॉरी टू से दिस। तो लोगों के मन में ये था, अरे ठीक है एक तुक्की चला के देख लेते, एक वही ICSSR के प्रोजेक्ट, या डाइटी के प्रोजेक्ट, ये माइटी की प्रोजेक्ट है, या यूजीसी मेजर प्रोजेक्ट है, यूजीसी माइनर प्रोजेक्ट है, देखा जाएगा बाद में, जब होने के बाद। तुक्की चल गई बंदे की, उस दौरान तो पता नहीं कर दिया था। सो लकीली ही केम, ही इज अ वेरी सिंसियर प्रोफेसर। अगेन आई एम टेलिंग यू, इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, एंड एंड भाभी भी साथ में आ गई हमारे घर में। अब बिलीव नहीं करोगे, 3 दिन भी नहीं देखा, रात भी नहीं देखा हम लोगों ने। मैं एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप मैंने कहा था भाई, आपने आपका कोर्स प्लानिंग एंड डिजाइन आपने जब सबमिट किया था आपका प्रपोजल, और आपके प्रपोजल कैसे सबमिट हुआ, आपके प्रपोजल में क्या क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा था हाँ यार कुछ कुछ कॉपी मेरे पास पड़ा है, तो उसी का कुछ एग्जाम्पल मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। So tomorrow when you want to submit a proposal to Swayam MOOCs, what all the things required? First of all, your name, your email, nature of employment, designation, working, and UG PG में training, research and experience in developing. Oh, यहाँ तक तो ठीक है. Then comes the course details. कोर्स डिटेल्स में क्या क्या चीज लिखा था, कोर्स नेम, मतलब आपके मूक कोर्स का नाम क्या है, किस सब्जेक्ट का है, ये साइंसेस, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटी, क्योंकि आप सबको पता है, बता दिया होगा। देर आर 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, who are offering the courses. And who are these 9 national coordinators? AICTE, CEC, IGNO, IIM Bangalore, and INI, NCERT, NIOS, NITTR, NPTEL, UGC. So they broadly divided their courses into 3 main, sometimes 4 also. First of all, UG, PG, and certificate courses. Then आपके पास नॉन टेक्नोलॉजी मूक्स कोर्सेस, नॉन टेक्नोलॉजी कोर्सेस के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, एंड then second important is about NPTEL. NPTEL is again IIT Bombay, IIT Chennai. So they are for the engineering and technology courses. IIM Bangalore and institutions of national importance, their institutions are also
carrying out these information related to this. So ये तीनों जो है they are offering these many courses. So the first and foremost thing when we are discussing about this is course planning and designing. अच्छा वो मैं दिखा रहा था मैं आपको. हाँ देखिए उसके अंदर क्या लिखा था मैंने. So first and foremost thing is what is the grade of the course, how many weeks, कितने हफ्तों का कोर्स है आपका, कितने हफ्तों का कोर्स है. Then what is important is course objectives. What are the objectives on which your course is getting prepared? Okay. Then उसके बाद है course outline. What is the outline of the course? And followed by course curriculum. What type of course? Then any prerequisites are there. मतलब कभी कभार क्या होता है कि आपका कोर्स का prerequisites कुछ रखना चाहते हो. Then comes the learning outcomes of the course. And very importantly, a small introductory video. सर ये introductory video कहाँ से आ गई? अब देखिए आप किसी भी नेशनल कोऑर्डिनेटर की स्वयं कोर्सेस में जब हम जाएंगे, so if you go for any standard national coordinators के courses के बारे में जाएंगे. For example, I went to CEC. So there is a course by Administrative Law course by Dr. Deepak Kumar Chauhan, Department of Law, Central University of Punjab. When you open this course, this is the introductory video. And this part you can see on the right side is the course summary, followed by a brief introduction, course layout, and books and references. और इनके जो course coordinator की जो bio. Finally, you can see that on the जो join कितने लोगों ने join किया, 717 लोगों ने join किया था. And to click on this, you can click on this join button to join that course. यही इसका जो procedure जो है. Okay. So that is the introductory video which I've been talking about. So introductory video is important. Then comes the course methodology. So what is the percentage of assignment के क्या देंगे, practical के लिए क्या देंगे, final exam के लिए कितना देना है, और others के लिए क्या करना है. उसके बाद then course content, मतलब module क्या है. टोटल 15 मॉड्यूल्स है मिनिमम. पहला मॉड्यूल का नाम क्या है, कंटेंट राइटर कौन है, वीडियो प्रेजेंटर कौन है, कंटेंट रिव्यूअर कौन है, टेक्निकल रिव्यूअर कौन है. सो वी हैव टू डिसाइड ऑल दिस इंफॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग ए प्रपोजल, नॉट आफ्टर सबमिटिंग द प्रपोजल. ओके, चलिए ये तो पूरा 15 का है. देन कम्स द कोर्स शेड्यूल. पहले हफ्ते में पहले वीक में क्या पढ़ाएंगे, कौन सा मॉड्यूल आप कवर करेंगे, नेचर ऑफ वर्क क्या है, रिमार्क्स क्या है. सो दिस इज द वे द एंटायर थिंग विल बी प्लान्ड. तो इन्हीं चीजों को मैं आपके सामने संक्षिप्त में ये लेके आ गया. सो द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप इन MOOCs डेवलपमेंट इज कोर्स प्लानिंग एंड डिजाइनिंग. कोर्स प्लानिंग एंड डिजाइनिंग. So whether the course is a regular or self-paced course, first point. Regular course है, how many? Self-paced में तो कोई end date नहीं रहता, ठीक है. Then objectives define करो, course outline define करो, and the course curriculum define करो, and prerequisites कोई है, because if you are offering some PG course without background of PG UG, you cannot and what are the learning outcomes and evaluation methodology. This is step number 1, course planning and designing. So what is step number 2? The step number 2 is content. So some content need to be developed. So content development पे क्या क्या चीज होना चाहिए, मैं आगे इसको आपको लेके जाऊंगा. So content development and curation of the content also, because the very excellent good quality content is also available in the public domain. We can also able to use that. But सबसे important वाली बात क्या है, with pedagogy, and learner centric pedagogy is very important. Okay, so using the existing content and learner centric pedagogy is very, very important. So what is this learner centric pedagogy and what are the things expected to be done? Now number 3,
Number 3 is the delivery platform, course delivery. I hope you have been writing all these things. आप लोग लिख पा रहे हैं? कोर्स टॉप स्टेप 1 आपने लिखा है कि नहीं? एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इमोजी में। तो बिना लिख के तो कंफर्म करने से तो गड़बड़ है मामला। लिख रहे हैं सर। सबसे इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं हम। अरे जयश्री कुमार जी, स्क्रीनशॉट मतलब इसके पीछे एक छोटा सा चुटकुला है, बता दो सर। जब हम फोटो लेते हैं ना, वो फोटो जाएगा गैलरी में, हम ये सोच के फोटो लेते बाद में पढ़ेंगे या बाद में देखेंगे। सर जहां तक इस शख्स की बात है, मैं बात कभी नहीं आया मेरे वाले में। मैं हमेशा सोचता रहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं बस ऊपर वालों ने हमें अच्छा खासा जो दिया, पहले लिखो आप। सबसे ऐसी बात नहीं, फोटो भी ले लीजिएगा, बट गैलरी को जरूर मत भूलिएगा, गैलरी और इमेजेस को मत भूलिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, नंबर 3 कोर्स डिलीवरी। कोर्स डिलीवरी मतलब आप किस डिलीवरी प्लेटफॉर्म में डिलीवर करोगे। ये यहां मूडल है, कैनवस है, गूगल क्लासरूम है, और ये स्वयं का प्लेटफॉर्म गूगल कोर्स बिल्डर, ये स्वयं का प्लेटफॉर्म है साहब। सो इसमें क्या है कि आप बट जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करोगे, and the main features of the platform you should understand. First of all, if you are using Moodle, go ahead. There are many foreign universities are using Moodle to deliver their MOOCs courses. So I'm mentoring some of the institutions also in outside India. So they are using Moodle. Some of the institutions are using Canvas. बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड गूगल क्लासरूम, इससे भी कई लोग बुक्स ऑफर कर रहे हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गूगल कोर्स बिल्डर। यहाँ एक छोटी सी बात आपके सामने रखने की मैं कोशिश करता हूं। सर ये बात आपका तो सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं है। आज ही सुबह किसी ने पूछा था, सर मैं एक छोटा सा 1 क्रेडिट का कोर्स में ऑफर करना चाहता हूं, कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे आप? सर मेरे लिए तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं, ये क्लाउड बेस्ड, अभी ये देखिए मूडल है, ये मूडल एनवायरनमेंट है। यहां आराम से यू रजिस्टर फॉर योर क्लाउड बेस्ड जिनोमियो.com में जाइए, एंड यू कैन गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ, एंड यू कैन ऑफर ए 1 क्रेडिट कोर्स, 1 क्रेडिट MOOCs कोर्स और 2 क्रेडिट MOOCs कोर्स। बट इसके ऑथेंटिसिटी, सर्टिफिकेट कौन देगा? भाई आजकल तो आपको सबको पता है, जब से ABC आया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, 50% of the credit students can earn from online. So now there is no difference between public university, private university, मानित विश्वविद्यालय, public मानित, private मानित, ऐसा कुछ नहीं। Now धीरे धीरे there are so many ratings are coming. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, स्विगी में, जोमेटो में हम रेटिंग देते हैं, कचौड़ी कहाँ बढ़िया रहेगा, और हमारे अलीगढ़ में तो ये अच्छा चीज मिलता है, यहां से कहां से मिलता है, जैसे आते एक रेटिंग दे देते, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। आई थिंक एवरी टीचर आल्सो शुड सपोज टू गेट रेटिंग आल्सो। इसका कोर्स, इंस्टीट्यूशन अच्छा है, कोर्स सही नहीं है, टीचर अच्छा है, इंस्टीट्यूशन सही नहीं है। सो ऑल दिस थिंग्स आई थिंक इट गो। सो माय पॉइंट इज दैट इफ यू कैन स्टार्ट ऑफ, आई थिंक दिस वुड बी योर मिड टर्म एक्शन प्लान। मैं आपको एक एक्शन प्लान भी दूंगा आज, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान, अगले 3 महीने में क्या करोगे, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस वर्कशॉप। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं रिजवान भाई, मैं आप ही के यूनिवर्सिटी में आऊंगा या आपके कॉलेज में आऊंगा, नैक में, इंशाल्लाह मैं कुछ कहता हूं तो हो जाता है।
Most welcome, sir. We are तो मैं waiting. आज We आ want जाता to हूँ see तो मैं you. यही सवाल पूछूंगा, मैं बिल्कुल यही सर, सवाल पूछूंगा. Sure, sir. So what I'm asking is, after the 12 दिन खान साहब इतना मेहनत करके इस प्रोग्राम को बनाया, so we should have some action plan. अगले 3 महीने में क्या करेंगे, अगले 6 महीने में हम ये प्लान करेंगे, साल भर में ये प्लान करेंगे. मैं इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्टिविटी भी बना के लाया, तो एक्टिविटी पे आपसे मैं करवा दूं. So one of the important thing to create your own look-like environment of your MOOCs is Genomio.com. यहाँ just simply go here and get registered yourself and we can start working. वो working के लिए क्या क्या करना है मैं आगे आगे बताऊंगा. So if you are not saying that no sir, actually we are comfortable with the Canvas, not Moodle. Simply this is again a open source cloud-based platform. www.instructure.com, Canvas or try Canvas. You go and register yourself. क्योंकि Google Course Builder जिसमें हमारा स्वयं 2.0 चल रहा था, वो कोई प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं देता. And tomorrow when your course got approved, they assume that you know everything. I think we should be very thankful to AMU and Khan Saab and Faiza Madam. They provided such an environment for you. This is very, very, very important. मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बात कहता हूं, ये सबको आना चाहिए. बिकॉज अभी देखिए कई कई ये तो अभी टीजर ही आया, तो मेन पिक्चर तो आगे आने वाला है. क्योंकि हम तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी है. देयर आर मेनी न्यू थिंग्स आर कमिंग बिकॉज आई फाउंड एक्सीलेंट टीचर्स इन दिस कंट्री, बट वो सारे रिमोटेस्ट प्लेसेस में है. वो सिर्फ एक वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड करके खुश है. मैं कहता हूं नहीं, क्रिएट ए कंप्लीट एनवायरनमेंट, यू कैन डू इट. सो इसके लिए ये काम आएगा. एंड थर्ड ऑप्शन हम सबको बताएं, Google Classroom. So either you can use Google Classroom, or you can use Canvas, or you can use Genomio. Hope you have been noting down all these things. अभी हमारे मित्र जो है जयश्री कुमार जी, आपने इसका पिक्चर ले लिया? नोट भी कर रहा हूं मैं. अरे जनाब कर दो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. सो अच्छा, सिंपली ये प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी लेना, ये रजिस्ट्रेशन की बात नहीं. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स. सेकंड, हाउ टू टेक द आपके कोर्स का एनहांसमेंट. अभी जनरली देखिए, एक छोटा सा एग्जाम बताता हूं. कोई भी टेक्स्ट बुक ही होता है, बट कुछ टीचर्स पढ़ाते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कुछ टीचर्स पढ़ाते तो ज्यादा नींद आता है. नींद आना भी अच्छी बात है, अच्छा लगना भी अच्छी बात है, दोनों अच्छी बात है. मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि नींद के लिए लोग गोली ले रहे हैं, तो कोई टीचर पढ़ाते तो अच्छा खासा तो नींद भी आता है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टीचर क्या करता है, टेक्स्ट बुक को पढ़ के एंड ही एड्स हिज एक्सपीरियंस एंड कम टू द क्लास एंड understands the level of the students, then he improvises in the classroom. So how best the teacher is going to improvise, that's very, very important. Okay, similarly MOOCs में भी, for example मैंने Moodle लिया था. Moodle में कुछ very interesting features हैं. उस features को लेने से मेरे कोर्स किस तरीके से improvise हो जाएगा. कैनवस को लेके पढ़ाने से, कैनवस को लेके मूक्स कोर्स को डिलीवर करने से कैनवस के इंपॉर्टेंट फीचर्स को इस तरीके से इंप्रूवाइज हो जाएगा. क्योंकि मूडल और कैनवस प्रॉपर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स है. ये गूगल कोर्स बिल्डर अब तो बना दिया लोगों ने, बट दैट इज नॉट ए प्रॉपर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. 1.0 में माइक्रोसॉफ्ट था, इट इज ऑल्सो नॉट ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. Okay, so these are the understanding level every one of us must be having it. Okay, coming back to delivery platform. So we need to select the appropriate delivery platform and understand the delivery platform, understand the features, and both theoretical and practical. Then next interesting and important thing, step 4 is course transaction. How to transact this course?
क्योंकि हम लोग कंटेंट को अपलोड करके छोड़ देते हैं, मतलब कहते कि अरे इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। सो यहां मैं एक छोटा सा चुटकुला बताता हूं, क्योंकि बीच बीच में चुटकुला बताना जरूरी भी है। हमारे एक कजिन सिस्टर है, ये चीज कोई बाबा आजम के जमाने में नहीं हुआ है, हाल ही में हुआ है। एंड she joined some MA education और MA administration course in Delhi, one of the premier institution। एक दिन उनका फोन आया कि वो मैं मामा लगता हूँ दूर से, मामा जी ये कोई मूक्स कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहा था, कुछ बता सकते हो? मैंने कहा था बेटा आपके कॉलेज में नहीं बताया मूक्स कोर्स कैसे ज्वाइन? नहीं मामा जी, उन्होंने कहा था कि ये इस सेमेस्टर में ये कोर्स ज्वाइन करो, कंप्लीट करो, सर्टिफिकेट हमें तो क्रेडिट दे दो। मैंने कहा था वो तो मैकेनिकल है। चलो खैर, मैंने बिटिया को बता दिया था, तो बेटा ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो इसके बाद क्या हुआ, मैं देखिए चुटकुला, इसलिए मैं चुटकुला ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ एक ABCID है, आप भी नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे तो कह रहे कि मामा जी ABCID क्या है? मैंने कहा था बेटा आपके पास वो डिजी लॉकर है? हाँ बेटा हाँ। मैंने कहा था एक डिजी लॉकर ओपन करो, उन्होंने अपने आधार नंबर एंटर किया था। उसके बाद मैंने कहा था बेटा मोबाइल नंबर एंटर करो। नहीं मामा जी मैं क्या बताऊं, पापा के पास है, पापा इनका काफी बड़ा प्रोफेसर है। तो पूरे घर के 10 लोगों का आधार मोबाइल नंबर, आधार कार्ड होता उन्हीं के पास। उनको फोन किया मैंने, देखिए शुरू कहा हुआ है, तो भाई साहब से बातचीत, तो भाई साहब क्लास में है। तो 2 मिनट के बाद भाई साहब छूट के आ गए। मैंने कहा था भैया तेरे पास एक OTP आया होगा। हाँ यार आ तो गया था, ये किसका है? मैंने कहा था तुम ये बता यार, पूरा हिंदुस्तान की हिफाजत तू ही कर रहे हो क्या? कमाल की बात है, तेरा बेटी का जो आधार में तो तेरा मोबाइल नंबर क्यों है? अरे यार क्या बताऊं, चलो खैर हो गया। होने के बाद मैंने बिटिया ने डिजी लॉकर ओपन किया। उसके बाद मैंने इनको कहा था बेटा तू एक काम कर, इसके अंदर क्या क्या चीज आ रहा है? अरे मामा जी हमारे जो आधार आ रहे हैं, पैन आ गया, DL आ गया, कई सारे चीज आ गए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैंने कहा था आप देखो आपके आपके इंस्टीट्यूशन काफी बड़ा संस्था है, इसका ABCID हुआ होगा, चलो है, ज्वाइन कर ली। मैंने कहा था बेटा ज्वाइन कर लिया ना? हाँ। आप समझ में आ गए, समझा दिया था। 1 महीने हो गया। 1 महीने के बाद मैंने सोचा एक बार बिटिया से पूछ लेंगे, पता नहीं क्या क्या किया था। तो सुबह सुबह नाश्ता वास्ता करके तो फोन किया मैंने, बस चाय पी रहा था। पहले एक ही चुटकी लिया था मैंने, दूसरी चुटकी अभी रह गई, तो गले से नीचे उतरी नहीं। तो मैंने कहा था बेटा कैसे चल रहे पढ़ाई? अच्छा ठीक चल रहे हैं। तो ये मूक्स का क्या कोर्स का कैसे चल रहे हैं? उन्होंने जो जवाब दिया था, मेरे दूसरे चाय की चुटकी रुक गई और मेरे बोली भी बंद हो गई 4-5 मिनट। और रिजवान भाई पूछेंगे सर बोली क्यों बंद हो गई आपकी? तो लड़की का जवाब सुन के, लड़की ने क्या बोला था, तो कह रहे मामा जी आपने ज्वाइन करने के लिए कहा था, ज्वाइन कर लिया, और कुछ करना है क्या मुझे? अब देखो Sir, this is extreme. अरे अरे रिजवान भाई, जी। ये हकीकत है। अब देखिए कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग इमोजी डाल रहे हैं रोने का, क्या करें? बट मैं आपको Extreme है sir. एक और But मजेदार this is बात reality, sir. Nowadays, this is reality. You are very correct. Very correct. तो बिटिया ने, मैंने कहा था कि तब इस बीच में वाइफ आ गई क्या बात है, चाय ऐसे पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा था यार कुछ तो ऐसे झटका लगा मुझे। तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, चलो चाय तो पी लिया मैंने। चाय पी के बेटा मैं तेरे को ना 5 मिनट में फोन करता हूँ, चाय वाय पी के। उसके बाद मैंने पूरा 1 घंटा कंप्लीटली समझा दिया था। तो क्या क्या चीज मैंने समझाया, ये बात आप सबको पता होना चाहिए। देखिए मैंने जो बिटिया को जो समझाया उसमें से ये सारे चीजें हैं। इसके अंदर 2 चीजें हैं। तो टीचर का तो मैं बाद में बात करता हूँ, टीचर का तो हमें कोई रिक्वायरमेंट अभी तो फिलहाल तो नहीं है, बाद में बताएंगे। तो ये है, सो व्हाट आई टोल्ड द गर्ल कि हाउ टू फॉलो द लेसन्स। मैंने इनको कहा था कि 4 क्वाड्रेंट अप्रोच में कोर्स बनाया। 1 महीना मतलब 4 हफ्ते निकल चुके हैं।
15 में से 4 हफ्ते निकल चुके हैं। तो मैंने कहा तो फर्स्ट हफ्ते का हाउ टू फॉलो द लेसन्स, सेकेंड व्हाट इज होमवर्क, व्हाट इज द टेस्ट, व्हाट इज डिस्कशन फोरम, व्हाट इज चैट, बस ये चारों चीज मैंने समझाया। और समझाने के बाद बेटी कह रही, मामा जी मुझे, ये वीरवार की बात है, वीरवार को, ये शुक्रवार की सुबह सुबह की बात है। तो बिटिया कह रहे कि मामा जी मुझे 3 दिन का समय दो, मैं इतवार के दोपहर तक का बताऊंगा। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड केयरफुली, दिस गर्ल हैज नॉट स्लेप्ट ऑन फ्राइडे, कंप्लीट फ्राइडे, sorry, it was happened on Thursday afternoon. Complete Thursday night she has not slept. Complete Friday she has not slept. Saturday she has not slept. And by Sunday afternoon she told me that, Mamaji, I have completed, accessed the everything. I have taken the notes of it, and whatever the assignments have given, because there was an extended period also, she has completed. That's the power of the student. That's the power of the student. ये बेचारे पता है कहां से आ गए? She is from one of the remotest place in UP. Only Hindi speaker, but she done excellently well. So many times I said we have wonderful diamonds, students के रूप में है और teachers के रूप में है इस देश में. Every teacher is a diamond. Every student is a diamond. Please don't segregate and don't separate them. Every teacher is a diamond. कई बार लोग कहते हैं, अरे सर मैं NAC में तो यही सुनता रहता हूँ, सर यहाँ तो टीचरों को समझ में नहीं आता। अरे यार क्यों समझाना अपना काम है। बच्चों को समझ में नहीं आता, अरे समझाना अपना काम है। हम अपने घर में भी बेटी सुनती है, बेटा सुनता नहीं है, बेटा सुनता है, बेटी सुनती नहीं है, तो क्या करोगे? यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन देम, पैशन के साथ, पेशेंस के साथ और परसिवरेंस के साथ उनको बताते हो। बाहर के बच्चों को क्यों नहीं? सो व्हाट आई सेड इन दिस एपिसोड, जिसका भी जो एपिसोड का मैं जिक्र कर रहा था, इसमें लोगों ने कहा था कि अरे यार ये लड़की क्या बात है, शी हैज डन एक्सीलेंटली वेल। सो समझाना हमें आना चाहिए, किसी को समझाने से पहले हमें खुद को समझ में आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so he started doing it, many things has been successfully completed by this time. The next important point is the course transaction, means पहले हफ्ते में what are the components has to be given, because हमें स्टूडेंट को डराना नहीं। I think joyful learning also happens in MOOCs, बट हमारे यहाँ क्या होता है, नहीं 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 हाई स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन कर। अरे स्टैंडर्ड जरूर मेंटेन करो भैया। और अभी किसी ने कल के दिन एक मेरे दोस्त उनकी जो बेटी रहती है जापान में, वहां गए थे। तो वहां जापानीज जो है ना, कम से कम वो तो 4-5 सालों से रह रहे, वो वहां पे तो चावल से लेके सब चीज जो है कोई स्टिक से खाते हैं, ऐसे 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 करके। मेरा दोस्त कह रहे हैं, भाई मैं कम से कम 1 घंटा ट्राई किया था और मुंह में कुछ नहीं गई। और बाद में सब लोग कहने लगे कि नो 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 यू शुड ईट लाइक दिस। उन्होंने कहा था भाई मैं भूखा मर जाऊंगा ऐसे होता तो फाइनली ही लर्न द ट्रिक, बट एट द सेम टाइम ही आल्सो started eating it. So please try to understand. So the procedure is very important. Next is course assessment and preparation. So what type of assessments can go? What level of assessments can go? So initially you are going for a knowledge level questions, or application level questions, or critical thinking kind of a questions, or analytical kind of a questions. And finally, since you are using a learning management system, bigger learning management system, and all these learning management systems, whether it's a Moodle, Canvas, or Google Classroom even, are having special options too for the learner engagement, learner encouragement, and learner motivation. ये तीनों तो है. Okay, so this is about the process which every one of us needs to understand. Let me go back once again.
सो इसमें से कुछ चीजों को मैं स्टार्ट कर दूंगा. फर्स्ट प्रॉब्लम इज कोर्स प्लानिंग एंड डिजाइनिंग. सेकेंड वन, कंटेंट डेवलपमेंट एंड क्यूरेशन ऑफ द कंटेंट विथ पेडागोजी. इसी से मैं शुरू कर दूंगा. एंड कोर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, जो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके मूक्स कोर्स डिलीवर करने वाले हैं, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्लेटफॉर्म वेरी वेरी क्लियरली. एंड फोर्थ वन इज कोर्स ट्रांसैक्शन. इस कोर्स को ट्रांसैक्ट कैसे करना है, पहले हफ्ते में क्या जाएगा, दूसरे हफ्ते में क्या जाएगा, तीसरे हफ्ते में क्या जाएगा, एंड फाइनली द असेसमेंट पार्ट एज सच. फाइन. So what is the starting point, and where do we and how do we ensure these processes need to be done? Okay. So one of the important starting point, which is very, very important in this regard, is the learner-centric pedagogical approaches. So the pedagogical design towards learner-centric approach. So, of course, learner-centric is very important. National educational policy is also talking about all these things. I'm not. So, there is a pedagogical model. There is a pedagogical model which we call it as learner-centric. And this is the model for planning, designing, and conducting learner-centric MOOCs. इसमें से कुछ चीज हम प्रैक्टिकली आज के दिन में हम लोग करेंगे. The learner-centric model consisting of design guidelines, activity constructors, and recommended actions. यहाँ एक छोटे छोटे वीडियोस है, एक मिनट 2 मिनट का. मैं सारे वीडियोस को आपको एक एक करके कर दूंगा. उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो हम आपको सिखा देंगे. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन. मैं इसको चला रहा हूँ. Voice is coming fine. Yes, sir. Clear. इसको एक बार सुन लीजिए. Yes, sir. Yes, sir. When we are creating our MOOCs, it is not sufficient to simply focus on information transmission and making accessible the various activities that one would do in a classroom. It is necessary to ensure that we follow learner-centric principles. The LCM model helps instructors to create MOOCs which are learner-centric in nature. The LCM model consists of learning dialogues which promote concept attainment through learner interaction, learning by doing, which is a formative assessment activity, learning extension trajectories which advance learners' learning along diverse paths, learning experience interactions which cultivate peer learning through focused discussions. In addition to these elements, it is important to keep in mind the orchestration. That is the process by which the course team designs the interactions for the learners as well as assists and guides the learners through the MOOC. Now that you have seen the different elements in the LCM model, imagine a typical classroom scenario. Can you identify one or more of these LCM elements in this scenario? Pause the video and write down your answer. After you are done, resume. One small thing here. He has explained the entire process. This is one of the very important things which we need to understand. Generally, what is happening when we are preparing the videos, all videos are longish videos. There is no interactivity. There is no engagement. So, what is the expectations of learners? Irrespective of their levels. Every learner is expecting the learning should be interesting. I think note kar lijiyega. Interesting, first point. Personalized, interesting, flexible, adaptable, personalized, and give engaging learning experience. I think this is important as far as MOOCs in general also.
So that the process should be interesting. Please confirm that my voice is reaching you. रिजवान भाई तो है स्क्रीन पे, बाकी सबको Yes, sir. सुनाई दे रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंशाल्लाह, जी सर, क्लियर आवाज आ रही है. Very good, very good, very good. So the first point is the environment should be interesting, flexible, adaptable, personalized, and give engaging learning experience. First of all, the environment should be interesting, flexible, adaptable, personalized, and give engaging learning experience. सर इसको कैसे बनाएं? मैं आपको दो रास्ते बताऊंगा. अभी एक रास्ता है, इन्होंने क्या किया था, he has explained the video for 30 seconds, then he will be asking a question, उसके बाद वीडियो जो है पॉज रहेगा 10 से 15 सेकंड. ये कोई इम्तिहान नहीं है. This is a alternative, this we call it as alternative pedagogical approach, where the learner, where the environment is giving flexible, adaptable, personalized and engaging experience. इसकी जरूरत है आज की तारीख में. ओके, सो आगे आगे मैं बताता रहूंगा, इसका सुन लीजिएगा. 10 सेकंड तक कुछ नहीं बोल रहे. Sure. Some of you may have thought of lectures and demos. पहले क्या देखा था आपने स्क्रीन पे, इनके स्क्रीन पे क्या देखा था? रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन. रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन. नाउ क्या 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 लिख के आ रहे? रिफ्लेक्शन स्पॉट डिस्कशन. आज मैं तकरीबन 12-13 सालों से इसको बहुत बड़े पैमाने पे मैं इसको यूज कर रहा हूं. मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको पहले बताऊंगा, इससे तो ज्यादा आपको इस बात को पकड़ने से आसानी हो जाएगी. लास्ट वीक 3 days I am out of station with YCMOU, Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, for a MOOCs workshop. It's a face-to-face workshop. In that workshop, the first and foremost thing is, जब मैं 3 दिन गया था, सोम मंगल बुध, 3 दिन तो नहीं था. So सोमवार को, so my generally teacher सर नहीं हो तो स्टूडेंट्स बल्ले बल्ले बोलते हैं, अरे सर नहीं है यार, थोड़ा छुट्टी मार लेंगे. बट मैंने क्या किया था, उनको 3 वीडियोस दिया था सेल्फ स्टडी के लिए. हर वीडियो में 3 प्रश्न है. ऐसे मंगलवार को दिया था, ऐसे बुधवार को दिया था. तो 9 वीडियोस दिया था. एंड एवरी वीडियो गॉट 1 क्वेश्चन, 1 or 2 questions. So 3 videos, 3 plus 3 plus 3, there are 9 questions. How and what is the total length of my video? 20 minutes. Maximum 18 to 20 minutes. Maximum sometimes. So there are 3 questions. How I created that questions? First 6 minutes. पहला 6 मिनट बच्चा वीडियो पढ़ेंगे. 6 मिनट खत्म होते ही वीडियो पॉज हो जाएगा. After 6 minutes, the video gets paused and there is a question will come. And किसका क्वेश्चन था ये? पिछले 5 मिनट के अंदर अंदर जो पढ़ाया गया उसी के ऊपर प्रश्न. Is it not interesting learning experience? और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं स्टूडेंट को ये बताता हूं, बेटा ये इम्तिहान नहीं है, ये इम्तिहान नहीं है. बट जो स्टूडेंट वीडियो पढ़ेगा, ये प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझेगा और समझने के बाद वो क्लास में आएगा, क्योंकि 48 घंटे पहले मैं देता हूं ये वीडियो. एंड फर्स्ट 10 minutes of the video I'll be asking that questions, what has been asked and what is the practicality of that one, how the experiential learning will be done. This is what is the need of the hour. And students, since देखिए स्टूडेंट्स के अंदर 2-3 चीजें, ये फ्लेक्सिबल है, कभी भी देख सकते हो. सर ने 3 ही वीडियो दिया था. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो की अवधि जो है 18 मिनट है. ये 28 मिनट और 89 मिनट
180 मिनट का वीडियो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है, ये वीडियो सारे जो है इंटरैक्टिव है, और इंटरैक्टिव के साथ साथ ये पर्सनलाइज्ड भी है। मैं आगे आगे बताऊंगा, करके दिखा दूंगा आपको कैसे पर्सनलाइज बना सकते हैं। एंड सो नेचुरल, एंड दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द असेसमेंट, नो असेसमेंट एट द सेम टाइम। असेसमेंट तो नहीं है, बट यहां से पढ़ के क्लास में जाएंगे, जब सर सवाल पूछेंगे तो इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जब मैं बताऊंगा, मेरी टीम को 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा इंटरनल में। यही एक स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग वाली बात है। सो माय पॉइंट इज दैट all these things are in the hands of the teacher, how to create that environment. Okay, now listen this part. So now he is explaining about the discussion, and please note down these points also. Some may have thought about activities, others may have thought about additional resources that are provided, and some may have thought about discussions. Now let us see how these map to the LCM model. In going from the traditional Friends, ये model, note करना be है it a आपको। classroom or a MOOC, to the learner centric MOOC model, what we need to keep in mind is, instead of simply creating lectures and demos and making them available, we now create learning dialogues or LEDs. ये नोट कर लीजिएगा प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। Instead of simply making activities and homeworks available to students, we now create learning by doing activities or LBDs with customized feedback. Instead of simply making discussion forum platforms available to students, we now have learner experience interactions or LXIs. These are driven by focused questions and exploit the power of peer learning. Instead of simply making some resources available to learners, we now have learning extension trajectories or LXTs. ये सारे नोट करना है आपको, ये सारे नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। Okay. Fine. So I think this is the change. Okay. So next, listen the rest of things. These help diverse learners advance their learning along their own chosen paths. Instead of simply making the contents available to the learners, we now orchestrate the course through these LCM elements in order to provide a rich and connected experience to all the learners in the MOOC. Okay. So this is about the first part of it. Then, so what is this model is being talking about? It is much explained in detail over here. So on the right top corner, we call it as LED, learning dialogue. So content, this is only not only the content. Earlier it is only lectures. Now content beds reflection spot. So what is this reflection spot? What is the purpose of the reflection spot, which we will be talking about little more. Then second component is learning by doing. So earlier it used to be homework assignments and practical problems, but now that has been changed to the activities plus customized feedback. ये दोनों आज मैं आपसे करवा दूंगा, ये दोनों मैं आप लोगों से करवा दूंगा, बट ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत जरूरी है. और एडिशनल रीडिंग मटेरियल is this already there, so this is one part of it. Okay, so when we are talking about LED means learning dialogue. So learning dialogue, basically what is the idea behind this?
सुरभि शर्मा कुछ सवाल पूछ रहे हैं मैडम? सुरभि, हाँ ये चाय का टाइम हो गया। हाँ सुरभि, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? अच्छा हाँ 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 बाय मिस्टेक अच्छा, लगता है सर अच्छा। वो माइक ऑन हो गया। जी। चाय के टाइम भी हो गया ना, ये मेरा माइक ये माइक ऑन हो गया। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह होना चाहिए यार, चलो चाय मिस का वक्त भी शर्मा, हो गया आप ना। अपना अपना बीच प्लीज बीच में माइक थोड़ा म्यूट बहुत कर लें। मिस शर्मा, अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। प्लीज माइक। सुरभि, सुरभि, सुरभि शर्मा अपना माइक ऑफ करें। डॉक्टर साहब मुझे दे दो, मैं कर दूंगा, मुझे तो होस्ट बना दो। नहीं तो चाय का डिस्कशन भी पूरा दिल्ली तक पहुंच जाएगा। यस सर। सर ये एचआरडीसी ने अपने पास रखी है पावर। अच्छा 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 अच्छा, वो हमारे वहाँ है। चलिए, सुरभि प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सुरभि प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Okay. So, what is this LED? Basically, what we are going to achieve, we want to promote the concept acquisition through learner interaction. This is a very, very crucial and crucial point. So, in this LED, there are two important things we are doing. The learning dialogue, as I told, promotes the concept acquisition through learner interaction. That's what we shown. Each LED consisting of a short video providing conceptual knowledge with explicit reflection spots for the learners to express prior conceptions or perform micro practice. So what is a reflection spot? The instructor poses a question or gives a brief activity and the video pauses. The learner is expected to respond to the question or activity. The instructor wraps up. तो इसके अंदर दो रास्ते हैं। आप वीडियो बना रहे हो, इस वीडियो में आप अच्छा खासा वीडियो बनाओ, मैं अभी करा दूंगा चाय के बाद। आपने वीडियो बनाया, सॉरी, वीडियो में क्या क्या चीज होना चाहिए। और यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, मैं आपको वो वहां उसको लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे हाल ही में एक वर्कशॉप हुआ था, उसी में हमारे प्रतिभागियों के साथ ये सारे बातें हमने डिस्कस किया था। ये देखिए आपके सामने भी मैंने ये चीज लेके आया, तो उनसे मैं कुछ प्रोजेक्ट करवाए थे मैंने, और यहाँ दो तीन बातों हैं। वीडियो ऑलवेज शुड बी इन PIP मोड, पिक्चर इन पिक्चर मोड। आप ये आपके लिए भी एक्टिविटी है, ये मत समझना सर उन्हीं का एक्टिविटी है, मेरा नहीं है, नहीं है। So you have to prepare at least 1 or 2 videos. Video must be PIP मतलब प्रेजेंटर रहेगा, प्रेजेंटेशन रहेगा, नरेशन रहेगा, याद रखिएगा। और ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो, यहां तो 10 मिनट मैंने कहा था, आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं। और यहां इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल पावर पॉइंट की जरूरत है। पावर पॉइंट के लिए आप पावर पॉइंट PPT, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर यूज कर लो, गूगल स्लाइड्स यूज कर लो, ये दोनों नॉन AI पावर्ड है। और आपको एक AI भी इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, गामा, कई लोगों को इसकी जानकारी भी होंगे। गामा करके एक सॉफ्टवेयर है, इससे बेहतरीन से बेहतरीन PPT आपको प्रेजेंटेशंस आपको मिलेंगी। ये चाय के बाद, क्योंकि चाय के चुस्की लेना जरूरी पे, इसके बाद बताएंगे। और चाय के साथ सच्ची इंपॉर्टेंट है, अदरक वाली चाय लेना जरूरी है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा मट्ठी हो, फैन हो, जरूर खा लीजिएगा, जरूरी है। और इसके बाद तो क्या करना है, इसके अंदर तीन स्लाइडें आपको बनाना है। एक स्लाइड में रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन रहेगी, और दूसरे में रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा, और तीसरे में कंक्लूड करेंगे। इसको करने के लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उसमें ऑलरेडी एक सैंपल आपके डिपार्टमेंट के बारे में एक छोटा सा वीडियो करके मैंने एक PPT बना रखा है, हेडिंग्स बना रखा है, आपके उसके अंदर कंटेंट डाल के यू कैन प्रिपेयर।
एंड सेकेंड पॉइंट, ये पहला स्किल है ये, क्योंकि tomorrow when you are getting the things done, you should know all these things well in advance. Then while preparing the video, what are the points to be noted down? First one, duration of the video. We should be clear about this. और slides to be highlighted. मान लीजिए 5 मिनट का वीडियो है, आप पहले स्लाइड में 5 मिनट निकाल दिया तो क्या करना है? और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा है, क्या बोलना है, कौन सा चीजों को हाईलाइट करना है, क्या बोलना है, किस हद तक बोलना है. What are the points to be highlighted? What to speak and what extent to speak. तो ये आने से क्या होता है, टुमारो जब आप किसी से भी काम करवाओगे ना, वीडियो बनवाओगे, ये क्लियरली बताओगे भाई मुझे तो इस तरीके का चाहिए वीडियो. और सबसे इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन. ठीक, इसके बाद मैं आपको मैं आपको एक और 2 और छोटे-छोटे एक्टिविटीज भी मैं दे रहा हूं. इसको डेवलप करने के लिए हम OBS सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, ओपन ब्रॉडकास्टर स्टूडियो को यूज करेंगे. आपके पास समय है तो OBS अभी टी ब्रेक में OBS इंस्टॉल करके रख लीजिएगा. बहुत आसान है. अभी OBS इंस्टॉल करने के लिए आप देखिए, ये इस लिंक में आपको जाना है, इसमें जाके विंडोज में जाना है. आपके पास विंडोज 10 और विंडोज 11 तो मिनिमम तो चाहिए. ओके, एंड यू कैन इंस्टॉल इट एंड यू कैन क्रिएट. दिस इज ए फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म. इसमें कोई इतना कोई मारामारी तो नहीं है. कंफर्टेबली वी कैन क्रिएट वीडियोस. ओके, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे. अब देखिए मैं वापस आ गया. देन उसके बाद आपको वीडियो बन गया. इस वीडियो को कहां यूज करेंगे? वी वांट टू अपलोड दिस वीडियो इन द यूट्यूब. यूट्यूब में अपलोड करने के लिए ये देखिए, यूट्यूब पे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी. अंडरस्टैंडिंग किस बात की होगी, प्राइवेसी क्या होगा, लाइसेंस क्या होगी, कैटेगरी क्या होगा, एम्बेडिंग क्या होगा, कमेंट्स क्या होगा. ये सारे चीज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा. बट उससे पहले मैं आपको एक सैंपल, वो वीडियो बनाने के लिए एक सैंपल ये है, सैंपल पीपीटी है मेरे पास. वो सैंपल पीपीटी अभी मैं आपके स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं. ये मैं आपको गूगल शीट से आपको शेयर करूंगा. ओके, मैं आपको शेयर कर रहा हूं इसको. यस, ये आराम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. मैं इसका लिंक जो है आपके चैट बॉक्स में कॉपी कर लिया मैंने. आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू नोट डाउन दिस वन, क्योंकि इसके बाद हम शायद वो चेंज करेंगे दोपहर को, सॉरी आखिरी सेशन में लिंक भी चेंज करेंगे. आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज पुट ए टिक मार्क ऑन दिस एंड डाउनलोड दिस. इसको डाउनलोड कर लीजिएगा. डाउनलोड करके एज ए पीपीटी डाउनलोड करने से आपका काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेंड्स, लेट्स टेक ए ब्रेक फॉर 15 मिनट्स. तो चाय वाय पी के आ जाएंगे. और डॉक्टर साहब मैंने इनको 2-3 एक्टिविटीज दिया था. एक OBS इंस्टॉल करने के लिए कहा था और एक गूगल ड्राइव का लिंक मैंने दिया था. इसमें OBS के जो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन का आउटलाइन है, so that you know they need not spend much time on that. बहुत शुक्रिया. So सर, बहुत शुक्रिया सर. कल मैं अभी सर कुसुमा ने थोड़ा सा OBS का एक्सपोजर दिया था. दे आर फेमिलियर विद द OBS एंड आई होप जो एक्सरसाइज आपने दी है सर, दे विल बी एट योर एक्सपेक्टेशन. मुझे OBS नहीं पढ़ाना है, बट OBS में मुझे वो पीपीटी को इंटरैक्टिव कैसे बनाना है, वो चीज मुझे करना है. वही चीज सर. ओके, राइट. तो या बिल्कुल फ्रेंड्स, बैक विद इन 15 मिनट्स. हां राइट सर. सर ये दूसरा लिंक से ज्वाइन करना है ना बाद में? जी सर दूसरे लिंक से ज्वाइन करना है सर. थैंक यू सर. ओके, राइट सर, आई विल टेक लीव. या सर.